John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, the devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, But the Lord Jesus comes to give us life and abundant life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है कि हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दे। Jesus came into the world यीशु इस संसार में आया to overcome and destroy the works of the devil. कि जयवंत हो जाए और शैतान के कामों को नाश करे। Yes, the devil has stolen our joy, हाँ, शैतान ने हमारे आनंद को चुरा लिया है, stolen our holiness, हमारी पवित्रता को चुराया है, stolen the blessings in our everyday work. प्रतिदिन के काम में हमारी आशीषों को चुराया है, And we are in great agony not knowing which way to turn to. और हम बड़ी पीड़ा में नहीं जानते कि हमें कहां पर जाना But चाहिए। Jesus came लेकिन यीशु आया to destroy the works of that devil कि शैतान के कामों को नाश कर दे and to give us abundant life. और हमें बहुतायत का जीवन दे। That's why he went to the cross. और इसीलिए वो क्रूस पर गया। If you read Ephesians 2 and verse 14, अगर आप इफिसियों 2:14 पढ़ती हैं, Colossians 2 and verse 14, कुलिसियों 2:14 Hebrews 2 and verse 14, और इब्रानियों in 2:14, all these इन verses, सभी वचनों में the Bible says Jesus overcame the principalities and powers and triumphed over them, बाइबल कहती है कि यीशु ने सभी प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर में विजय पाई है, giving himself as a sacrifice. अपने आप को उसने बलिदान दे दिया And he made an open show of them. और उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा And बनाया he overcame the power of death और वो मृत्यु की सामर्थ पर जय पाया to make us live, कि हमें जीवित to रखे, make us कि live. हम जी सके। What does the devil do? शैतान क्या करता है? Firstly, he makes us to accuse God and makes us lose the presence of God. वह ऐसे बनाता है कि हम लोग परमेश्वर पर दोष लगाए और परमेश्वर की उपस्थिति खो दे। When things don't go our way, we say, why God has not done this? जब सब कुछ हमारे तरीके से नहीं होता है तो हम कहते हैं परमेश्वर ने इसे क्यों नहीं किया है। When we don't get the blessings or we have many sorrows come to us, the first thing we say is, why did God allow this? और जब हम आशीष नहीं पाते हैं, दुख आते हैं हमारे जीवन में, तो हम कहते हैं प्रभु ने ये क्यों होने दिया है। That's the accusation which the devil brings into our hearts. यही तो वो दोष है जो शैतान हमारे दिल में लेकर आता है। And secondly, what does the devil do? और दूसरी बात शैतान ने क्या किया? Is an accuser of the brethren. वो तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। In Revelation 12:10 we read that. प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम ये पढ़ते हैं, He's standing before God and accusing you. वो परमेश्वर के सामने खड़े रहकर आप पर दोष लगाता है, He is accusing me. वो मुझ पर दोष लगाता है। And what happens? और क्या होता है? In Job chapter 1, 9 and 10, अय्यूब अध्याय 1 वचन 9 और 10 में देखिए, Satan stood before God शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा and हुआ said, look at this और Job. कहा, इस अय्यूब को देखो, You have put your hands around him, God. परमेश्वर तूने इसके आसपास अपने हाथ रखे, You have protected him, तूने इसे सुरक्षित रखा, protected all that he इसकी has, सारी चीजों को सुरक्षित रखा, protected his household. इसके घराने को सुरक्षित रखा, That's why he is following you. और इसलिए ये तेरे पीछे चलता है। Take your hand off अपना हाथ दूर कर दे and he will curse तो you. ये तुझे कोसेगा, He will curse ये you. तुझे कोसेगा। Yes, the devil is accusing us sitting in the heavens. शैतान तो हम पर कई बार दोष लगाते जाता है, Many और times कई बार God says to Satan and makes a challenge with him. परमेश्वर शैतान से कहता है, उसे चुनौती देता है, Even if I take my hands away from my beloved son, beloved daughter, he will not deny me. मेरे हाथ को मैं अपने बेटे से दूर या बेटी से दूर कर दूं तो भी ये मेरा इनकार नहीं करेगा, वो कहता है। Revelation 12:10 the Bible says, प्रकाशित वाक्य 12:10 में बाइबल कहती है, and 11 and 12, और वचन 11 और 12 में, they overcame the devil, overcame Satan by the word of their testimony and the blood of the Lamb. वो मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत हुए। And we heard a loud और noise, हमने बड़ी आवाज सुनी, and it was Satan falling from the heavens as a lightning. और हमने देखा कि शैतान बिजली जैसे नीचे गिर The रहा है। devil who is accusing you before God, परमेश्वर के सामने शैतान जो आप पर दोष लगाता है, accusing you before other people. दूसरे लोगों के सामने आप पर दोष लगाता है, As the Holy Spirit comes into you, he will fall as lightning from your life. जैसे पवित्र आत्मा आप पर आएगा, शैतान आपके जीवन से नीचे गिर जाएगा, Yes, you will be free. आप आजाद हो And जाएंगे। God will fulfill all that he has to fulfill through you. आपके द्वारा प्रभु को जो करना है परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। Maybe the devil has bound you with sickness and you say, I have rheumatism in my hands, I have arthritis in my hands, I can't cook for my children. शायद शैतान ने आपको बीमारी दी और आप कह रहे हैं मेरे हाथ में अर्थराइटिस है, मैं अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना पाती हूँ।
Maybe the devil has put a sickness in your body. You're not able to go to work and earn for your family. शैतान ने आपके ऊपर बीमारी डाली और आप काम पर नहीं जा सकते, अपने परिवार के लिए नहीं कमा सकते हैं। Maybe the devil has put financial troubles. शायद शैतान ने आर्थिक रीति से संकट लाए हैं। And you're not able to provide for your home. और आप अपने घर के लिए प्रयोजन नहीं कर पाते हैं। Maybe you are all the time running around in the ministry. हो सकता है शायद आप सेवकाई में हमेशा यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। And the devil is telling your children, your father is not there to take care of you. और शैतान आपके बच्चों से कह रहा है कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे पिताजी यहाँ पर घर पर नहीं रहते हैं। But my friend, लेकिन मेरे दोस्तों, today the Holy Spirit is coming into you. आज पवित्र आत्मा आप में आ रहा The है। same Holy Spirit who came into Jesus वही पवित्र आत्मा जो यीशु में आया था will come into you. वो आप में आएगा And he will transform you. वो आपको बदल देगा। You know what he will do? जानते हैं वो क्या करेगा? He will make you pray for the accusers. वो ऐसा करेगा कि आप पर दोष लगाने वालों के लिए आप प्रार्थना करें। In Job 42 and verse 9 and 10, अय्यूब अध्याय 42 वचन 9 और when 10, the devil made the people to accuse Job, जब शैतान ने ऐसे किया कि अय्यूब के दोस्त ही अय्यूब के ऊपर दोष लगाने लग गए, saying you believed God, कहा तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया, but then today your children have died, और देखो आज तुम्हारे बच्चे तो मर चुके हैं, your riches are taken away, तुम्हारी धन संपत्ति तो चली गई है, your body is full of तुम्हारा sickness. शरीर तो बीमारी से भरा है। Yes, the devil was speaking through those friends of Job and accusing him. शैतान तो अय्यूब के दोस्तों के द्वारा बातें कर रहा था, उस पर दोष लगा रहा था। But what did God say? लेकिन परमेश्वर ने उस समय क्या कहा? Let Job pray for those accusers. अय्यूब इन दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना करे। And Job prayed for the accusers. अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। And God's grace came upon him. परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया, Delivered him from his captivity. उसकी बंधुआई से उसे छुड़ाया, Delivered him from his skin उसकी disease. चमड़ी के रोग से उसे छुटकारा दिया, Gave him back everything he had lost in double और measure. जो कुछ उसने खोया था सब कुछ उसने उसे दुगने नाप में दिया। God will do that for you. परमेश्वर ये आपके लिए करेगा। As you pray for the accusers, you will be healed. जैसे आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे आप चंगे होंगे। Let not your heart be आपका troubled. मन व्याकुल न हो। My friend, shall we pray? मेरे दोस्तों आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, remember your children. अपनी संतानों को याद कर, Let your Holy Spirit come upon them now. तेरा पवित्र आत्मा भी इसी समय इन लोगों पर आए। Lord, see what the devil has done in their lives. प्रभु देख कि शैतान ने इनके जीवन में क्या किया है, How he has put them into darkness. कैसे इसने इन्हें अंधकार में रखा है। Remember them. इन्हें स्मरण कर प्रभु, Drive out these evil powers. और इन सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों को निकाल दे। You evil powers, we bind you in Jesus' दुष्ट name. आत्माओं की शक्ति हम तुम्हें यीशु के नाम में बांध देते हैं। We cast you out in Jesus' name. यीशु के नाम में तुम्हें निकाल देते हैं। You have brought accusations and guilt and fear in their hearts. Now I command you to leave them in Jesus' name. इनके दिल में तूने हीन भावना और दोष भावना को लाया, यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि अभी इसी समय चले जाए। Lord, show them how much you love them. हे प्रभु, तू इन्हें दिखा कि तू इनसे कितना प्रेम करता है। Let them have their job back. इनकी नौकरी इन्हें वापस मिल जाए, Yes, let them be honored in their और jobs. ये अपनी नौकरी में आदर पाए, Let them have more salaries, Lord. और प्रभु ये और ज्यादा तनख्वाह पाने वाले हो। Bless the salaries and multiply the blessing. प्रभु इनकी तनख्वाह को आशीष दे प्रभु, और इनकी आशीषों को बहुगुणित करते चले जा। And everyone who gives offerings, give them 10 times blessing in double measure. प्रभु जो कोई भी अपनी भेंटें भेजता है प्रभु इन्हें 10 गुना आशीष दे, दुगनी आशीष। Thank you for doing that, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। No more financial trouble. अभी से कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, No more humiliation. और कोई भी अपमान नहीं होगा। Let them be honored from today. प्रभु आज से आगे ये लोग आदर पाए। Krishna, कृष्णा, you have been talking about other people and against the Lord. आप निश्चय दूसरे लोगों के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते आए हैं, But your life is miserable. लेकिन आपका जीवन बहुत मुश्किल परिस्थिति में है। You're not able to succeed in anything. आप किसी भी बात में सफल नहीं हो पा रहे हैं। Today you are repenting. आज आप पश्चाताप कर रहे हैं। You love your mother so much. आप अपनी माँ से इतना प्रेम करते हैं। God is blessing your mother and strengthening her. परमेश्वर आपकी माँ को आशीष दे रहा है, उन्हें बल देता जा रहा है, And you will have her back. और वो आप उन्हें वापस पाएंगे। And God is building your life again. और परमेश्वर आपके जीवन को फिर उभार रहा है। Become his child. आप उसकी संतान हो जाएं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Father, पिता bless Krishna कृष्ण को आशीष दे, and give him great grace to complete
his writings and let it be a blessing to millions of people. प्रभु इनके ऊपर अनुग्रह कर कि ये अपनी सारी बातों को पूरी तरह से पूरा कर सके और लाखों लोगों के लिए ये लेख के लिए द्वारा बहुत से लोगों के लिए आशीष हो जाए। Everyone who has the talent and the grace, let them begin to prosper, Lord. हर एक व्यक्ति जिनमें ये योग्यता है उनके ऊपर अनुग्रह कर प्रभु कि वो संपन्न होते चले जाएं। Heal everybody. हर एक को चंगाई दे प्रभु। Raise them up. इन्हें उभार कर खड़ा कर प्रभु। Give them double portion, Lord. इन्हें दुगनी आशीष दे। Let this day be a great blessing. और ये दिन इनके लिए बड़े महान आशीष। Prosper whatever thy children do today. और प्रभु तेरी संतान आज जो कुछ भी करती है इन्हें संपन्न बना। Let there be peace in their homes. इनके घरों में शांति होने पाए। God's presence in their spirits. और इनकी आत्माओं में परमेश्वर की उपस्थिति हो। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. God bless you.